Hello and welcome back to the channel. In today's session, I'm going to take a beautiful poem of English written by Robert Frost. The title of the poem is The Road Not Taken. Before I start with the explanation, let me bring it in mind that this poem has been a part of ICSE and CBSE curriculum from last many years. So, it is of very great importance in English literature. The poem Road Not Taken, written by Robert Frost. The first stanza of the poem, as you can see on the screen, is two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Here, the writer says, the poet Robert Frost, he says he is a traveller at the right moment when he is writing a poem, and he is standing at such a place where there are large number of trees, or we can simply say somewhat like a forest area. The leaves of the trees have turned yellow, and which resembles that it is autumn season. Now, at that place where he is standing, two roads are diverged, two roads are going, and the writer says that being a traveler, I'm waiting here from long, and I cannot travel both the roads. So I'm looking down to one of the roads, and for a long time he stared at that road, looked for it, and until as far as he could see the curve of that road. Now, ये पोएम असल में हम सभी की ज़िंदगी के में जो भी चीज़ें होती हैं, जब हमें एक ऐसा कठिन डिसीजन लेना होता है, उस तरीके की मानसिकता को यहाँ पर जो ये पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो दर्शा रहे हैं. जो दो सड़कों की उन्होंने बात की है, ये ज़िंदगी का कोई भी एक ऐसा मोड़ हो सकता है जब आपको डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टी होगी, या हुई या होती है कि अब हमें कौन सा वाला रास्ता चूज़ करना चाहिए. तो वो इन रोड्स के थ्रू हमें वही एक लाइफ की एक जो सिचुएशन है उससे हमें मिलवाते हैं. और वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ से कि दो रास्ते जाते हैं. ऑब्वियस ही बात है कि हम हमेशा दोनों ही रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकते हैं, तो मुझे कोई ना कोई रास्ता तो चूज़ करना ही पड़ेगा. फिर वो वहाँ खड़े खड़े काफ़ी देर तक एक रास्ते को देखते हैं, तब तक देखते हैं जब तक कि उनको बिल्कुल एंड उसका रास्ते का नहीं दिखाई देता है. वो उतने दूर तक उस रास्ते को निहारने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि दोनों पर तो मैं एक साथ नहीं चल सकता हूँ. और फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें किसी एक रास्ते पर तो चलना ही पड़ेगा. तो ऐसा ही मोड़ हम सभी की ज़िंदगी में कभी ना कभी आता है, जब हमें कोई भी जो दो रास्ते हैं उनमें से किसी एक रास्ते को चूज़ करना होता है और उस पर हमें आगे बढ़ना होता है. तो ये फिर आगे कहते हैं, then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. और फाइनली काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहने के बाद, after waiting for a long, finally he chose a road to move, and he says that the road which he has chosen was grassy. So much grass was there on that road which he has chosen to move. And it needed a wear. यानी कि उस जो रास्ता उन्होंने चूज़ किया वो रास्ता ऐसा था जिस पर कि ग्रास थी, और वो ग्रास बिल्कुल ठीक थी, यानी अभी तक कुचली नहीं गई थी किसी के भी पैरों से, जिससे ये लग रहा था कि अभी तक इस रास्ते पर कोई नहीं चला है. Though as for that the passing there had warned them really about the same. और सोचते हैं कि ये भी कुछ ऐसा ही हो सकता था जैसा कि और कोई इस रास्ते पे
चल सकता था, लेकिन कोई भी इस रास्ते पर अभी नहीं चला है। लग तो ऐसे ही रहे हैं कि दोनों रास्ते यूज़ किए गए हैं, लेकिन फ़िलहाल जिस रास्ते की वो बात कर रहे हैं उस पर ऐसा दिखाई देता है कि उस पर कम लोग चले हैं। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. फिर वो आगे कहते हैं कि उस सुबह में लेकिन दोनों ही रास्ते बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। दोनों के ऊपर ही जो पत्तियां गिरी हैं रात में वो ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई हैं। पैरों के चलने की वजह से जैसे पत्तियां कुचल जाती हैं तो गंदी हो जाती हैं या काली पड़ जाती हैं, ऐसी वो पत्तियां नहीं हुई हैं, जो कि ये बताता है कि अभी मॉर्निंग में किसी ने भी उस रास्ते को चूज़ नहीं किया है। अभी तक उस रास्ते पर कोई भी नहीं गया है। और जब उन्होंने अपने लिए एक रास्ता डिसाइड कर लिया तो फिर वो सोचते हैं कि अब जो दूसरा वाला रास्ता बचा है उस रास्ते पर मैं किसी और दिन चलूँगा। जबकि वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं कि जब मैंने एक रास्ता चूज़ कर लिया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रास्ता लौट करके फिर वापस मुझे उस मोड़ तक ले आएगा जहाँ से फिर मैं दूसरे रास्ते को चूज़ कर पाऊँगा। यानी उस रास्ते से वापस लौट कर आ पाना मुश्किल होगा, लेकिन वो फिर भी ये चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे अब एक रास्ते पर चलना है। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. और फिर फाइनली वो एक गहरी सांस लेते हैं और इस चीज़ को महसूस करते हैं कि अब आज के बाद कभी फ्यूचर में कभी जब मौका लगेगा और वो सोचेंगे इस चीज़ को तो उन्हें याद आएगा कि कभी वो किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए थे जहाँ से उन्हें एक रास्ता चूज़ करना था और उन्होंने एक ऐसा रास्ता चूज़ किया जिस पर बहुत कम लोग चले होंगे और उस एक डिसीजन ने उनकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये सिंपल शब्दों में जितने अच्छे से लाइफ की फ़िलोसॉफ़ी को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ डिस्क्राइब किया है, इट इज़ I have no words to praise that the way he has expressed himself here. अब समझ लेते हैं इसकी थीम बेसिकली क्या है। तो इस पोएम के थ्रू जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो हमें हमारी ज़िंदगी की फ़िलोसॉफ़ी को बताना चाह रहे हैं कि हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें दो रास्तों में से किसी एक रास्ते को चूज़ करना होता है, और जो भी रास्ता हम चूज़ करेंगे, फाइनली जो भी डिसाइड हम करेंगे कि हमें क्या करना है आगे लाइफ में, उन सभी रास्तों पर कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होंगे। हर रास्ते के अपने कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस, कुछ एडवेंचर्स होंगे। अच्छी चीज़ें भी हमें मिलेंगी, बुरी चीज़ें भी होंगी जो हमें फेस करनी होंगी, बट फाइनली वो हमारा डिसीजन होगा और हमें ऐसे ही आगे बढ़ते रहना होगा। जो भी रास्ता हम चूज़ करते हैं, जो भी डिसीजन अपनी लाइफ में लेते हैं, उस डिसीजन को वापस रिपीट कर पाना किसी टाइम मशीन के थ्रू कि हम दोबारा से उसे चेंज कर लें अगर डिसीजन सही नहीं रहा, तो वो पॉसिबल नहीं होता है कभी भी। लेकिन फिर भी हमें अपने जो भी डिसीजन है उसको हमें अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, उसके लिए फुल डेडिकेशन के साथ अपने आप को डिवोट करना चाहिए उस डिसीजन को, जिससे कि हम फुलफ़िल कर पाएँ। तो ये चीज़ जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं, और वो यही कहते हैं कि लाइफ में कभी भी जब हम फ्यूचर में बैठे होंगे और सोचेंगे कि हमने उस समय क्यों डिसीजन लिया, तो हम ये भी चीज़ समझ पाएंगे कि हम उस समय पर जो हमने डिसीजन लिया शायद वही डिसीजन सही था। और जैसा कि उन्होंने बताया कि कभी कभी हमें लाइफ में ऐसे भी रास्ते चूज़ करने पड़ते हैं, ऐसे भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो मुश्किल भरे होते हैं, लेकिन फाइनली यही लाइफ है और हमें ऐसे डिसीजंस लेने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जैसे कि पोएट ने एक ऐसा रास्ता चूज़ किया था चलने के लिए जिस पर बहुत कम लोग चले थे। तो दो तरीके के रास्ते हैं, एक वो रास्ता है जो पूरा बढ़िया बना हुआ है, जिस पे कंक्रीट वगैरह सीमेंट से बना हुआ है, जिस पर आप रोज़ ट्रेवल करते हैं, लेकिन उस पर आपने क्या किया, आप चले या नहीं चले, नोबडी इज़ गोइंग टू आइडेंटिफाई। बट इफ़ यू चूज सच अ पाथ विच इज़ लेस ट्रेवल्ड, तो आपके फुट स्टेप्स उस पर शायद ऐसे निशान बन जाएं जो लोग हमेशा हमेशा याद रखें।
कहने का मतलब ये है कि आप लाइफ में कुछ ऐसा कर पाएँ विच इज़ प्रेशियस, विच इज़ चेरिशेबल, विच पीपल विल रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. तो लाइफ ऐसी ही है, हमें ऐसे हमारी लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बट फाइनली दिस इज़ लाइफ and we need not to have any regrets for it, but keep on moving because finally it is life. So this is The Road Not Taken by Robert Frost. I hope you all would have loved the explanation. See you in the next video. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, like and comment on Empower Tutoring. Share it with your friends because I am going to come up with more literature sections almost from all the classes. It's just a beginning. So see you in the next video. Till then, bye bye.